Very good morning, dear students. Welcome to your learning classes of accountancy. Today is your lecture number 68, and from this lecture, I'm going to start your last chapter of the syllabus, that is chapter number 22, financial statement with adjustment. Financial statement 21 chapter I have explained to you earlier. Financial statement means making the record of your final account, that is your balance sheet and trading and profit and loss account. What was the format of trading and profit and loss account and balance sheet? I have explained in my previous lectures. Now, there are some adjustments which are not there in trial balance, but it has to be adjusted when we are preparing that trading profit and loss account and balance sheet. These adjustments are necessary for making this trading profit and loss account and balance sheet, because without adjusting all these points we will not be able to find out the true and fair view and fair position of the firm. See, why there is a need of financial statement with adjustment. The purpose of making various adjustment is to ensure that the final account must reveal the true profit or loss and true financial position of the business. Number two, one, it helps us to record those adjustment which were left or committed and were not recorded in the accounts. जो left हैं, जो committed हैं, जिनको हम record नहीं कर पाए हैं, उन सारे adjustment को हमें record करना है. A proper recording of adjusting entries assists us to separate all the financial transactions into a year-wise category. Year-wise category में financial transaction को record करने के लिए we make this financial statement adjustment. Number 3, recording of adjusting entries provide us to room for making various provisions which are made at the end of the year or after assessing the entire year's performance. Now see the items which usually need adjustment. Number 1 is closing stock. Closing stock मैंने आपको financial statement बताया था. क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. एंड ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा जो है टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. और ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो होता है? इट इज़ शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. कहाँ शो होता है ये? इट इज़ शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. और दूसरा ऑन द अदर हैंड इट इज़ शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. कहाँ पे शो होता है? अंडर द हेड करंट एसेट्स में शो हो जाता है. पहली बार क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड इन द बुक्स. फिर उस क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है इट हैज़ टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. और फिर इसको आप ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो करते हैं अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स. Now see second, outstanding expenses. Expenses due but not paid. Outstanding expenses are the expenses that is due but not paid. It has remain unpaid at the end of the accounting year. तो इसका जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है दैट इज कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. क्या होती है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बेटा? कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इफ़ इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको ऐड करेंगे टू द कंसर्न एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तब भी आप इसको जो है कंसर्न एक्सपेंसेस को ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर देंगे इन द कंसर्न एक्सपेंस. जैसे वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड हो जाएगा ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये सैलरीज में ऐड हो जाएगी इन पीएनएल अकाउंट. और फिर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज करंट लाइबिलिटी. ठीक है. Now 3, prepaid expenses. एक्सपेंसेस रिसीव्ड इन एडवांस. अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस जो आपके नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस है करंट ईयर में रिसीव्ड हो गए, इट इज़ नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में पर्टिकुलर एक्सपेंस में से वो माइनस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वेजेस हैं तो वेजेस में से वो माइनस हो जाएंगे. और अगर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे. और फिर इसको आप लाइबिलिटी एसेट साइड और बैलेंस शीट में शो कर देंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है जिसको हमने एडवांस में पे कर दिया था. नंबर 4 इज एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. इनकम अर्न आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकम अर्न कर लिया बट उसका पेमेंट आपको एंड ऑफ द ईयर तक नहीं मिल पाया है. इट इज़ नोन एज एक्रूड इनकम. इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. द एंट्री ऑफ एक्रूड इनकम इज एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न इनकम अकाउंट. ठीक है. और उसका ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडेड टू द रिस्पेक्टिव इनकम ऑन द क्रेडिट साइड. क्योंकि इनकम है तो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उस कंसर्न एक्सपेंसेस में वो ऐड हो जाएगी. और फिर आप इसको बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड एज करेंट एसेट इसको शो कर देंगे. इज इट क्लियर? तो इनकम रिसीव और नेक्स्ट इनकम इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो इनकम होती है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, जिसको हम प्रीपेड इनकम बोलते हैं, एडवांस इनकम बोलते हैं, जिसको आपने रिसीव कर लिया लेकिन अभी आपने इसके लिए इसको अर्न नहीं करा है. तो एडजस्टमेंट एंट्री इज कंसर्न इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट.
और फिर आप एंट्री इज कंसर्न इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, और ये जो आपकी ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न इनकम ऑन द क्रेडिट साइड में कंसर्न इनकम में से इसको माइनस कर दोगे एंड देन इट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. कहाँ शो हो जाएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Next is depreciation. Depreciation, what is depreciation? Depreciation is the loss in the value of fixed assets or decline in the value of fixed asset, that is called depreciation. Depreciation का जो adjustment entry होती है that is depreciation account debit to concerned asset account. asset पे charge होता है जिस concerned asset पे बोला होता है, and इसका profit and loss account में ये show हो जाता है on the debit side as a separate item. जैसे आपको बोला कि मशीनरी पे depreciation आपको charge करना है, the cost of machinery is 1 lakh, 10% आपको डेप उस पर चार्ज करना है, तो 1 लाख का 10% इज 10,000 आपका डेप चार्ज हो गया, तो 10,000 की अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो जाएगी. और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में शोन ऑन द एसेट साइड बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ कंसर्न एसेट, तो उसको कंसर्न एसेट में से आप माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन को, और उस कंसर्न एसेट की वैल्यू जैसे 1 लाख की अगर मशीनरी है 10,000 का डेप है तो 1 लाख माइनस 10,000, तो आपका 10,000 की अमाउंट उसमें पोस्ट हो जाएगी. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड बेटा. ये आपकी सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, कुछ एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन करी है अभी, देन न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगी मैं of these chapters and some other entries will be there in my next lecture. Thank you beta, have a nice day.